Now the next tense we have for our voice, that is future perfect tense, right? So this is the 11th tense. Active voice means the rules of this tense is that you know already we have done in tenses topic. Subject आंदा है, will shall तो आना ही आना, plus have plus verb the third form तो बाद object आंदा है. एंड इन नैगेटिव सेंटेंस यू नो बस हैल्पिंग वर्ब ਦੇ ਨਾਲ ਨੋਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਵਿਲ ਸ਼ੈਲ ਜੋ ਵੀ ਲੱਗਣਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈਵ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨੋਟ ਆ ਜਾਣਾ, ਯਾਨੀ ਸਬਜੈਕਟ ਪਲਸ ਵਿਲ ਜਾਂ ਸ਼ੈਲ ਪਲਸ ਨੋਟ ਪਲਸ ਹੈਵ verb ਦੀ ਥਰਡ ਫॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट. और इंटरोगेटिव ऑल ऑफ यू नो वी पुट द हैल्पिंग वर्ब इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस. तो विल शैल जो भी लगता है सेंटेंस ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਏਗਾ और then सब्जैक्ट आएगा. उस तो बाद हैव ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ एंड then verb ਦੀ थर्ड फॉर्म है एंड then ऑब्जेक्ट है. क्वेश्चन मार्क. Now we talk about the passive voice, right? So that you know अपना ऑब्जेक्ट ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲੈ ਆਣਾ ਆਪਾਂ, will shall ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਤੋਂ ਆਈ ਜਾਣਾ ਹੈ. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ have ਹੈਗਾ, have ਦੇ ਨਾਲ been ਹੋ ਰਹਾ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡਾ, right? Then verb ਦੀ third form is already there और by लगता है that you know and then subject. And in negative sentence उतना ही लगना है बिल्कुल. ऑब्जेक्ट आ गया, will shall जो भी है उस तो बाद not आना है, ठीक है जी. then have and then been आना है, यानी not कितने लगना है, will shall तो बाद, और उस तो बाद वर्ब दी थर्ड फॉर्म, फिर बाय एंड देन सब्जेक्ट. अब हुण आपां गल करदे हां इंटरोगेटिव सेंटेंस दी. इन इंटरोगेटिव सेंटेंस वी हैव टू पुट द हेल्पिंग वर्ब इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस. तो विल शैल कित्थे आ जाएगा मुरे एंड देन ऑब्जेक्ट हैगा तुहाडा. उस तो बाद हैव हैगा, फिर बीन है वर्ब दी थर्ड फॉर्म, उस तो बाद बाय एंड देन सब्जेक्ट, राइट. तो आपां क्या ये थोड़ा इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया, राइट. सो दिस इज योर रूल्स हो गए. नाउ वी कम टू द sentences. Now first of all we have the first sentence. ਆਪਾਂ imperative assertive sentences यानी positive sentence ਕਰਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ. ਜਿਵੇਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ will have read the book. third form ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ read read ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ read ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, read 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 ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਪ੍ਰੋਨਾਉਂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ. ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੇਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵੌਇਸ, the book ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ obviously you know ਹੈ ਨਾ. the book, ਫਿਰ will ਤਾਂ ਆਣਾ ਹੀ ਹੈ, have ਆਣਾ, ਫਿਰ क्या लग जाना है एक been. रेड, फिर क्या लगना है बाय, ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही है ਜਿਹੜੀ पैसिव वॉइस ਹੁੰਦੀ ਚ बाय लगता है. और ਜਿਹੜਾ सब्जेक्ट है यानी हरप्रीत है वो इट विल कम इन द बिगनिंग ऑफ इन द एंड ऑफ द सेंटेंस और ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा, राइट. नाउ वी कम टू द सेकंड सेंटेंस. शी विल हैव रिसीव्ड द लेटर, ठीक है जी. नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज द लेटर ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ. तो लेटर ਦੇ ਨਾਲ क्या लगेगा विल, फिर हैव आ गया दैट यू नो, ठीक है. फिर बीन आना है और ਜਿਹੜਾ वर्ब ਦੀ थर्ड फॉर्म है वो एज इट इज रहेगी रिसीव्ड, और फिर बाय लगना है और ਜਿਹੜਾ शी है ਉਹਦਾ क्या हो जाएगा ਇੱਧਰ आके हर, राइट. नाउ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋ ਸਿੰਪਲ ਸੈਂਟੈਂਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ. ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ. ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ क्या लगता है नॉट, यानी आई शैल नॉट हैव लाइक्ड चॉकलेट्स, राइट. तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज चॉकलेट ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੂਰੇ ਲੈ ਆਣਾ है, चॉकलेट्स विल, फिर नॉट लगना है दैट यू नो, हैव लगना है, बीन होर जुड़ जाना, ठीक है जी. लाइक्ड, फिर क्या लगना है बाय, और इधर आई सीगा, आई का क्या हो जाना है मी. नाउ वी कम टू द इंटरोगेटिव सेंटेंस. इन इंटरोगेटिव वी हैव द सेंटेंस विल निधि हैव संग द सॉन्ग, राइट. सो आप वेन एवर वी आर गोइंग टू मेक इट पैसिव वॉइस तो आप विल नूं तो मुरे ही रखना है, और जो द सॉन्ग है दिस इज योर ऑब्जेक्ट, ये मुरे आ जाएगा एज अ सब्जेक्ट. फिर हैव, फिर क्या लगना है बीन थर्ड फॉर्म, फिर बाय लगा के जो सब्जेक्ट है निधि उसनों आप ऑब्जेक्ट बना देना है. So will the song have been sung by Nidhi? So right. So now we talk about the last tense, that is your future perfect continuous tense. Similarly जब आप present perfect continuous tense किया है, past perfect continuous किया है, similarly we are going to do the future perfect continuous. यानी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ voice नहीं बनती है. अगर इस टाइप का sentence ਤੁਹਾਨੂੰ future perfect continuous ਦਾ ਆਂਦਾ ਹੈ then we are not going to make it passive voice, right. Now we have the like we have completed the topic of tenses here. tenses ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ voice ਹੋਏਗੀ that is finished. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ different type ਦੀ voice ਹੁੰਦੀ ਹੈ. now I am going to tell you one by one. first of all we have passive of having two objects, right. ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ object ਮਿਲਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ. object क्या ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ sentence ਦੇ end ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ. ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ sentences ਕੀਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ subject ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ helping verb ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, verb ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, then object ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ. ਨਾਓ ਵੀ ਹੈਵ ਦਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਚ ਦੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆਬਜੈਕਟਸ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਂਜ ਕਰਨੇ ਦੇ ਦੋ ਮੈਥਡ ਹੈ. ਕੋਈ ਵੀ ਆਬਜੈਕਟ ਆਪਾਂ ਮੂਰੇ ਲੈ ਕੇ ਐਜ਼ ਅ ਸਬਜੈਕਟ ਉਸਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਨਾਓ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ. ਮੋਹਨ ਗੇਵ ਮੀ ਅ ਬੁੱਕ. O1 means this is your first object.
दिस इज योर सब्जैक्ट, दिस इज योर वर्ब, थानू पढ़ के पता लग रहा है कि देयर इज नो हेल्पिंग वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, एदा मतलब सिंपल पास्ट टेंस है यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ये हो गया थोड़ा फर्स्ट ऑब्जेक्ट और अ बुक थोड़ा हो गया सेकंड ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन होएगा, कोई वस्तु होएगी या कोई प्रोनाउन होएगा, जिवें मी है थोड़ा, है ना। तो ये थोड़ा फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, दिस इज योर सेकंड ऑब्जेक्ट। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਵੌਇਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੀ, ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਫਰਸਟ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੇਮ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਆਬਜੈਕਟ ਬਚੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਰਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਣਾ। ਦੇਖੋ ਮੀ ਫਸਟ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਵੌਇਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੋ ਆਬਜੈਕਟ ਦੀ ਆਪਾਂ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬੋਥ ਆਰ ਕਰੈਕਟ, whichever you find easy you can adopt that method. In the first method मी ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਪਾਸਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਟੈਂਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਵਾਜ਼ ਜਾਂ ਵਰ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਾਜ਼ ਓਬਵੀਅਸਲੀ, ਔਰ ਆਈ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ, ਆਈ ਵਾਜ਼, ਗਿਵ ਦੀ ਥਰਡ ਫॉर्म ਗਿਵਨ, ਸੈਕਿੰਡ ਫॉर्म ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਗਿਵ ਗੇਵ ਗਿਵਨ, ਇੱਥੇ ਥਰਡ ਆਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਵਰਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਏਗਾ। और फिर बाय तो पिछे भी थोड़ा मैं दसिया बाय लगता हमेशा, और जो सबजैक्ट है उसनों ऑब्जेक्ट बनाना, यानी बाय मोहन, ये नेम है इदा ही रहेगा। दिस इज योर फर्स्ट मैथड, और लगाया मैं इतने क्यों, क्योंकि आप दो तरीके बना सकते हैं। दूसरे मैथड क्या करना है, तुम सैकेंड ऑब्जेक्ट को अगे लेके आना है। सैकेंड ऑब्जेक्ट क्या है थोड़ा, अ बुक, एंड दिस इज योर वही उदा ही वॉज, तो उदा ही लगना है बिकॉज दिस इज अ सिंपल पास्ट। वॉज क्योंकि अ बुक एक है इसलिए वॉज आएगा, और उस तो बाद गिव दी थर्ड फॉर्म आएगी। ਇੱਥੇ क्या चेंज आना, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਵਰਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਕਿੰਡ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ। ਅਗਰ ਸੈਕਿੰਡ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫਰਸਟ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੂਰੇ ਟੂ ਲੱਗੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਯਾਨੀ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਵਰਬ ਦੇ ਨਾਲ ਟੂ ਲਗਾ ਕੇ ਫਿਰ ਫਰਸਟ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸੇਮ ਹੈ ਬਾय ਮੋਹਨ। ਆਈ ਹੋਪ ਇਟਸ ਕਲੀਅਰ। ਨਾਓ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੈਂਟੈਂਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਫਾਦਰ ਬੌਟ ਮੀ ਅ ਸਾਈਕਲ, ਤਾਂ ਮੀ ਇੱਥੇ ਫਰਸਟ ਆਬਜੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਈਕਲ ਦੂਜਾ ਆਬਜੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ। तो आप पहला फर्स्ट ऑब्जेक्ट में मूरे लेके आते हैं, मी दा आई हो गया, ये भी थोड़ा सिंपल पास्ट है, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, सेकंड फॉर्म लगी हुई है, तो आई दे नाल वॉज आ गया। थर्ड फॉर्म भी बॉट होंगी है, बाय बॉट बॉट, और सेकंड ऑब्जेक्ट कितना आएगा वर्ब दे नाल, अ साइकिल, बाय फादर इधर आ गया। और दूसरा मैथड क्या है, सेकंड ऑब्जेक्ट में अगे लेके आना, यानी अ साइकिल अगे आ जाएगा। अ साइकिल वॉज बॉट, और फर्स्ट ऑब्जेक्ट ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲਗਾਣਾ ਹੈ, ਟੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਲਗਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਟੂ ਮੀ ਬਾय फादर। ठीक है जी। नाउ लेट्स कम टू द थर्ड एग्जाम्पल। आई हैव गिवन यू द 3 एग्जाम्पल सो दैट ਤੁਹਾਨੂੰ अच्छी तरह समझ आ जाएगा। द टीचर नरेटेड अस अ स्टोरी, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ टीचर सब्जेक्ट है, दिस इज योर वर्ब, O1 मतलब फर्स्ट ऑब्जेक्ट, O2 मतलब सेकंड ऑब्जेक्ट। नाउ अस का क्या हो जाता है, वी, आप वही उदा ही करांगे, फर्स्ट ऑब्जेक्ट अगे ले आए, वी क्या है, असी प्लूरल हो गया इसीलिए वर आएगा, ज़्यादा दे नाल वर आता है। वी वर नरेटेड, वर्ब दी थर्ड फॉर्म थानू पता ही है, और क्या लगना है, सेकंड ऑब्जेक्ट वर्ब दे नाल, अ स्टोरी, फिर बाय आना है, और द टीचर इधर आ जाएगा, बिल्कुल सेम है। हुण आपां सेकंड ऑब्जेक्ट नूं अगे ले आंदे हैं, यानी अ स्टोरी अगे आ गया। हुण अ स्टोरी एक है इसलिए वॉज आएगा, और वर्ब दी थर्ड फॉर्म नरेटेड, और जो सेकंड फर्स्ट ऑब्जेक्ट है वो टू लग के जुड़ेगा, टू अस बाय द टीचर इधर आ गया सब्जेक्ट, राइट। सो दिस इज योर अनदर टॉपिक। नाउ द सेकंड टॉपिक जोड़ा कि आप डिफरेंट टॉपिक्स कर रहे हैं, पहला हो गया थोड़ा दो ऑब्जेक्ट वाला। हुण वो सेंटेंसिस है जिहदे विच कंटेनिंग प्रैपोजिशन, मतलब पैसिव वॉइस उन्होंने सेंटेंसिस की करनी है जिहदे कोई ना कोई प्रैपोजिशन हैगी है। हुण जिहड़े आपां ये सेंटेंस कीते हैं इन्हां च कोई प्रैपोजिशन सानूं नज़र नहीं आ रही, जिन्ने भी आपां हुण टेंसिस वाले आपां सेंटेंसिस कर लिया, देयर वाज नो एनी लाइक प्रैपोजिशन। हुण आपां वो सेंटेंसिस करने हैं जिहदे विच प्रैपोजिशन आंदी है, राइट। तो कुछ सेंटेंसिस इदां होंदे जिन्हां दे विच वर्ब दे नाल, मतलब आफ्टर द वर्ब तो बाद कोई ना कोई प्रैपोजिशन लगी होएगी। तो चेंज करन लई, एक्टिव टू पैसिव बनाउण लई वर्ब जिहड़ी हुंदी है वो प्रैपोजिशन जिहड़ी वर्ब दे नाल लगी हुंदी है वो ड्रॉप नहीं करनी हैगी, यानी छड्डनी नहीं है वो, बिकॉज ये वर्ब दा पार्ट है, यानी वो प्रैपोजिशन भी रहेगी और बाय भी लगेगी। जिहड़ा आपां एक्टिव टू पैसिव बनाउण लई बाय लगांदे हैं वो प्रैपोजिशन हुंदी है। ना एग्जाम्पल देखो तो ज़्यादा समझ आ जाएगा। फर्स्ट एग्जाम्पल है, ही वॉज लुकिंग एट द पिक्चर, राइट। तो ये क्या है, लुकिंग क्या है, वर्ब, तुहानूं पता लग रहा है, और उहदे नाल प्रैपोजिशन अंडरलाइन किया है। एट क्या है, प्रैपोजिशन। वही मैं तुहानूं दस रही है, ये सेंटेंस वो है जिन्हां दे विच कोई ना कोई प्रैपोजिशन आ रही है, राइट। तो लुकिंग
ਵਰਬ यानी ਵਰਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਣੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਐਦਾਂ ਦੀ ਐਦਾਂ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਰਬ ਦੀ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਐਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗੀ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਦ ਪਿਕਚਰ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲੈ ਆਣਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਦ ਪਿਕਚਰ ਆਬਜੈਕਟ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਸਬਜੈਕਟ ਬਣ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਵਾਜ਼ ਲੁਕਿੰਗ ਕਿਹੜਾ ਟੈਂਸ ਹੈ? ਪਾਸਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ। ਔਰ ਪਾਸਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਜ਼ ਜਾਂ ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਆ ਲੱਗਣਾ ਹੈ? ਬੀਇੰਗ ਹੋਰ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਿਕਚਰ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਜ਼ ਆ ਗਿਆ। ਬੀਇੰਗ ਵਰਬ ਦੀ ਥਰਡ ਫਾਰਮ, ਯਾਨੀ ਵਰਬ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਲੁਕਿੰਗ, ING ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਲੁਕਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਐਟ ਫਿਰ ਬਾय, ਯਾਨੀ ਦੋ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੀ ਹੈ ਇੱਧਰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੀ ਦਾ ਕਿਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਹਿਮ। ਦ ਪਿਕਚਰ ਵਾਜ਼ ਬੀਇੰਗ ਲੁਕਡ ਐਟ ਬਾय ਹਿਮ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ देयर चिल्ड्रन। ਵੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਚਿਲਡਰਨ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ठीक है जी। और लुक आफ्टर है यानी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, फर्स्ट फॉर्म आ रही है, मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में तुहानू दस्सिया सीगा जदों वॉइस करनी है तो इज एम आर यूज होना है अकॉर्डिंगली, है ना। तो इत्थे चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन यानी बच्चे प्लूरल हो गया, प्लूरल दे नाल क्या आएगा? आर, ठीक है जी। और लुक जिहड़े लुक आफ्टर ये पूरा थोड़ा वर्ब है, मतलब ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਲੁੱਕ ਦੀ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਲੁਕਡ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਪਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਵਰਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਲੁਕਡ ਆਫਟਰ ਫਿਰ ਬਾय ਤਾਂ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਹੈ ਔਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇਖ ਲਓ, ਦੇ ਲੁੱਕ ਫॉर द एनिमी, राइट। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ क्या हो रहा है? वर्ब ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ है, फॉर भी ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ है, आफ्टर ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ है, एट भी ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ है। ਤਾਂ ਆਪਾਂ क्या करना है? द एनिमी ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲੈ ਆਣਾ है। और आप पहला टेंस देखना है, किहड़ा टेंस किहड़ा है? सिंपल पास्ट। किदा? कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, सेकंड फॉर्म आ रही है, यानी वॉज या वर लगना है अकॉर्डिंग टू द रूल। तो एनिमी, एनिमीज था यानी एनिमी एक है तो वॉज आ गया। और लुकड ये भी ऑलरेडी सेकंड फॉर्म है, दिस इज योर थर्ड फॉर्म। वॉज लुकड फिर फॉर ये नाल रहना है, फिर क्या आना है? बाय, और दे दा क्या हो जाना है? देम। द एनिमी वॉज लुकड फॉर बाय देम, राइट।